آدمی طالب بن کے چلنا. کیا بن کے چلنا؟ طالب. کیونکہ اللہ بے طلبوں کو کبھی دیے نہیں، طلبوں کو محروم کرے نہیں. طلب نہیں ہے تو اللہ نبیوں کے اولاد کچھ محروم کر ڈالا. کن کے اولاد؟ نبیوں کے اولاد محروم ہو گئے. نوح علیہ السلام کی، اور ذرا آپ لوگ ذرا ایسے حرکت کرو، ذرا ایسے حرکت کرو تھوڑا، کہہ کے تو حضرت مجھے دسنا نہیں ہے، دور جاؤ نا کو، دور جانے کو. ہاں چلیے. نوح علیہ السلام ہے دین کی خاطر ہے. اچھا غور کرو، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال. کتنے؟ 950. لوگ مار مار کے بے ہوش کر ڈالتے تھے. مر گیا سمجھ کے اٹھا کے لے جا کے گھر میں پھینک کے چلے جاتے تھے. ویسا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 950 سال. ایک مرتبہ ایک بوڑھا لکڑی ٹیک کے جا رہا، ساتھ میں جوان بیٹا ہے. سامنے سے نوح علیہ السلام جا رہے. یہ بوڑھا کیا کرا، جوان بیٹے کو بولا اس دیوانے سے تو بچنا بولا. وہ جوان بیٹا ابا وہ آسا ادھر دو بولا، لاٹھی لکڑی. وہ لکڑی لیا، جا کے سیدھا نوح علیہ السلام کے سر پہ مارا. سوچو، ایسا 950 سال پتھر سے مار کھانے والے کی بیوی اور بیٹا یہاں نہیں ہے تو اللہ محروم کر ڈالا. لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں ہے تو اللہ محروم کر ڈالا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، یہ بارو ساؤنڈ آنا نہیں، 4 بجے نہیں، 5 بجے نہیں. ابو طالب ہے، ابو طالب ہے. ابو لہب ہمارا نبی کا مخالف کیا. مخالف کیسا مخالف بولے تو، ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، بنو امیہ کی خاندان کی. 2 خاندان مکے میں ایسے ہے، ہاشمی اور بنو امیہ، اونچے درجے کے. وہ خاندان کی عورت ہے، ابو سفیان کی بہن. اور ابو لہب کی بیوی ہمارے نبی کی چاچی. دشمنی کیسا کری گئے تو بیوی بھی جنگل کو جا کے کانٹے لاتی تھی. اور ہمارے نبی کے پڑوس میں ان کا گھر تھا، گھر کے سامنے کانٹے بچھا کے رکھتی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے. گھر کے اندر ہے عقبہ بن ابی معیط، بکری کا بچے دار، بچے کی تھیلی ہوتی نا بکری کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے سے وقت میں سیدھا گھر کے اندر سے ایسا پھینکتا تھا. وہ آنکھ آپ کے پیٹھ پہ تو گرتا تھا، یعنی تو آگے چولہا تھا، وہ پکنے کی کچھ میں جا کے گرتا تھا. آپ صبح سے شام تک دعوت دے کے گھر کے پاس آتے، گھر کے سامنے گندگی پڑا رہتا تھا. آپ کہتے لوگوں دوست نہیں بنے میرے، اچھے پڑوسی تو بنو بولتے تھے. لیکن یہ ابو لہب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہتے تو آپ کلمے کی آواز لگاتے، میں اللہ کا رسول بول کے بھی ان جھوٹا بولتے تھے. پھر کنکریاں لے کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسا دیکھ کے مارتا تھا. آپ کے پیچھے ہے نا ایڑیا پھٹ کے خون نکلتا تھا. ابو لہب. اور اللہ اتنا مال دیا اسے، سال کو 1 کروڑ کی آمدنی، 1 کروڑ کی. قرآن میں اللہ ذکر کیا. ابو لہب کیا بولا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اگر میرا بھتیجے کا دین صحیح ہے، قیامت کے دن مال دے کے چھٹکارا پاتا ہوں گیا میں. اتنا مال تھا. پھر اللہ نے بتایا، حالانکہ 4 نسبتیں حاصل ہے اسے، سید، قریشی، ہاشمی اور چاچا.
ये 4 निस्बत हासिल है, लेकिन हमारा नबी का मुखालिफ करने पे तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब जहन्नम में, फिर अबू लहब की बीवी वमरातुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी दोनों जहन्नम में जाएंगे। ये जो अबू तालिब है और एक चाचा आपके दुश्मनी नहीं करे। 8 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी चले गए, तो ये अबू तालिब चाचा पालते थे। रिवायतों में है इतना साथ दिए अबू तालिब है, इतना ख्याल रखते थे हमारा नबी का, सबसे पहला हमारे नबी को खिलाते थे, बाद में अपने बच्चों को खिलाते थे। बिन नबी बनने के बाद भी अबू लहब दुश्मनी करा, अबू तालिब साथ दिए, 10 साल साथ दिए, जब तक इन्हों जिंदा है, और दुश्मना कम सताते थे। इन्हों चले गए तो मौका अच्छा मिला सताने का उन लोग। ऐसे अबू तालिब मरने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आके बोले, चाचा मेरा कान में बोलो कलमा, क़यामत के दिन मैं गवाही दूँ। तो इतनी कोशिश करें। मक्के वाले आए एक मरतबा, काफिरा सरदारा, अबू तालिब से कहने लगे, तुम्हारा भतीजे को दावत देने से रोको वरना कत्ल कर डालेंगे। कहे क्या जवाब ऊंची दिए मालूम है? ऊंची जवाब अबू तालिब है, हाशमी खानदान के सारे लाशा गिर गए, कोई भी नहीं है। जब तुम मेरा भतीजे तक पहुंच के कुछ कर सकते, अगर हाशमी खानदान की एक आंख भी जागती है तो मेरा भतीजे तक तुम पहुंच नहीं सकेंगे। इतना ऊंची जवाब दिए। मक्के में तो ये नौबत नहीं आई, मदीने में आई तो अंसारों ने बताया अपने जानों को सामने रख के। ऐसे अबू तालिब मरने लगे। मेरा कान में बोलो कलमा कहे। अल्लाह कुरान की आयत उतार दिया, नबी जी आप जिसको चाहते उसे हिदायत दे नहीं सकते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बांदियाँ हैं, एक मारिया खिब्तिया, एक रैहाना। मारिया खिब्तिया मुसलमान हो गई, रैहाना यहूदी औरत है, मुसलमान नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऊंची बात रैहाना के सामने रखे, और क्या रखे मालूम? आपने फरमाया, रैहाना तू अगर मुसलमान हो गई तुझे मैं अपने निकाह में लेता बोले। और अल्लाह ने हमारे नबी के बीवियों के बारे में क्या बोला? आए मेरे नबी के बीवियाँ, दुनिया में तुम्हारे जैसे औरतें कोई भी नहीं, बोले अल्लाह ने। इतना बड़ा शरफ हासिल था, इतना बड़ा, इतनी ऊंची बात रखे, तो मुसलमान हुई तो अपने निकाह में लेता बोल के। रैहाना बोली, बस मैं अपनी जगह ठीक हूँ, बोली मुसलमान नहीं हुई, मुसलमान नहीं हुई। नबी के हाथ में भी हिदायत अल्लाह नहीं रखा। यहाँ के दरवाजे नहीं खुले तो कोई खुलवा नहीं सकेगा। एक मरतबा सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबी में खुशी में उधर इधर टहल रहे, उधर इधर फिरते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला आए और आके कहने लगे, बिलाल खुशी में टहल रहे, क्या बात है? तो कहने लगा, उमर क्या ही अच्छा है, हिदायत को अल्लाह ने अपने हाथ में रख लिया। अगर इंसानों के हाथ में हिदायत होता, मेरे जैसे काले कलटे को कौन हिदायत देता? अल्लाह हिदायत देने के लिए ना काले को देखते, ना गोरे को देखते, ना मालदार को देखते, ना गरीब को देखते, ना हसब को देखते, ना नसब को देखते, खानदान नहीं देखते, माल गोरा काला कुछ नहीं देखते, ये देखते हैं। यहाँ तलब है तो अल्लाह खोलते हैं दरवाजे, नहीं है वक्त के नबिया खुलवा नहीं सके। हाँ, वक्त के नबिया खुलवा नहीं। एक बार तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मुल्क में सहाबा को भेजे, एक बादशाह को दावत देने के लिए। वहाँ बादशाह के पास पहुँचने के बाद सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अजमाइन ने, वो बादशाह क्या करा, वो बादशाह के कमरे में ले गया, एक पेटी निकाला, संदूक,
उसमें कपड़ों में लपेट के है, एक एक कपड़ा रोल लपेट के है, ऐसा खोल के बताया। उस पर फोटो है, वो पेपर वो कपड़े के ऊपर है। ये कौन है तुम्हें मालूम? क्या बोला? नहीं मालूम, ये आदम अलैहिस्सलाम का फोटो है, ये तस्वीर। दूसरा खोला, ये किसका तुमको मालूम? तो नहीं, ये नूह अलैहिस्सलाम का। एक एक खोलते बताते जा रहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सारे बताते गया। कौन है पूछते जा रहा, पता नहीं। आखिर में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खोल के बताया। तो बोले ये तो हमारे नबी है। तो पूछे ये तेरे पास पहुंचा कैसा? तो बताया गया आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे थे, या अल्लाह ये जितने नबी दुनिया में आने वाले हैं वो सब मुझे बता बोले। तो वो उनके तस्वीरें मिल गए आदम अलैहिस्सलाम को। वो मुंतकिल होते 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 बदलते बदलते ये बादशाह कने पहुँचे, और हमारा नबी का फोटो तस्वीर भी देखा उसने, और उन बोला ये सब हक है, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करता बोला। सोचो, इस्लाम मैं कबूल नहीं करता। तो जब वापस आए तो साहबा कराम तो अबू बकर सिद्दीक रहते उनको सुनाए पूरा वाक़या। तो बोले काश कलमा पढ़ लेता और क्या अच्छा होता गया। ये सब रहते परे उन मुसलमान नहीं हुआ। क्यों? यहाँ नहीं था। अल्लाह ज़बरदस्ती से किसी को देते नहीं, ज़बरदस्ती से। इसलिए भाई ये काम में चलने वाले 3 किस्म के लोग चलते हैं, तालिब, काने और तनकीद। तालिब हमेशा तरक्की करता रहता है, आगे बढ़ते रहता है, और काने जो है, काने एडजस्ट करने वाले, बस भाई ये डेंजर तबका, बस भाई चिल्ला लगा लिए, 4 महीना लगा लिए, बस कहा है कि वहाँ छते उन्हों आगे नहीं बढ़ते। ये जो तनकीद है, ये तनकीद तबका जो है, टोकने वाले, दूसरों की ऐबों को तलाश करने वाले, ये इतना डेंजर तबका कुरान में इनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब रखा। टोकने वाले, ऐबों को तलाश करने वाले। हमें तालिब में रहना, दोनों में नहीं रहना। तालिब हमेशा आगे बढ़ते रहता है, तलब के साथ आदमी अल्लाह के रास्ते में भी मकाम पर भी चलता रहेगा, अल्लाह उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। कि वह तो आदमी के अंदर बेतलब आती कि पीछे छाता लगी आदमी सामने आगे नहीं बढ़ता। तलब है कहाँ से कहाँ तक पहुँचे लोग, कहाँ से कहाँ तक। एक मरतबा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे। ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबीन में बड़े ऊंचे दर्जे के, एक 3 कौल है, एक उवैस खन्नी की, एक सईद इब्न ज़ुबैर की, एक हसन बसरी की। लेकिन मेरा दावा नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं बता रहा हूँ, ये ऊंचे दर्जे के तासुब में हसन बसरी नजर आते। क्यों मालूम? 130 सहाबा से मुलाकात इनकी, 130। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द है, जगाओ इनको, मारे खूब है। अभी क्या करते, एक आदमी, एक मौलाना दूसरे मौलाना को दावत दी, उन्होंने अंडे पका को डाले, जैसे दोपहर में इन्होंने पका के डाले सका। क्या पका को डाले भाई? अंडे। उलमा होते, वो अंडे पका डाल तो उन्होंने क्या करे, अंडा उठाए, मौलाना इसकी अम्मा कहाँ है को पूछे। उन्होंने क्या बोले मालूम? यतीम पैदा हुआ क्या? नहीं, यतीम पैदा हुआ क्या? अच्छा। एक मौलाना गए एक दावत में, पहला एक आदमी भेंट को है, प्लेट में इनो भेंट है, लेग पीस उसके तरफ है, अब इधर भेंट को है। अब लोग क्या करे मानो, अरे भाई वो फ्लाइट जो उठ को गिरा था ना, उसका किस्सा क्या हुआ को पूछे। अब उन बोलना शुरू करे तो फिर प्लेट ऐसा बदल डाले। इन देखा, या अल्लाह ये क्या है? तो मौलाना बोले शुक्रगुजार अल्लाह का, वो मुर्गी के पैरा खुबले के तरफ है, हराम खाता है, मैं बचाया तेरे को बोले।
अच्छा क्या बोल रहा हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द है। हज़रत अली को अल्लाह जो इल्म दिया वो किसी को नहीं दिया। हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे नबियों के बाद कायनात में किसी के पास ज़्यादा इल्म है तो वह हज़रत अली को है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इल्म का महल मई, उसके दरवाजे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। एक मरतबा इशा की नमाज के बाद साथियों के सामने बोलना शुरू करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला बिस्मिल्लाह है, बा। ये बा का क्या मतलब बोलना शुरू करे इशा के बाद है, फजर की अजान हो गई और बा का मतलब चल रहा। ऐसा इल्म दिया हजरत अली रजी अल्लाह तआला को उनके शागिर्दिनों। ये जितने तसव्वुफ के सिलसिले हैं, खादरिया, चिश्तिया, शहरवर्दी, नक्शबंदी, ये पूरे जाके हसन बसरी को मिलते। इतने बड़े ऊंचे इमाम बयान कर रहे और क्या बोले मानो, लोगों अल्लाह का दरवाजा खटखटाते, अल्लाह दरवाजे को खोलेगा। उनमें एक बुढ़िया बैठ को है, उन पूछी, बुढ़िया हसन क्या अल्लाह का दरवाजा बंद पड़ा है, खुलवाना पड़ता क्या उसे? कहीं क्या बंद, उन क्या तो बंद कर को रखा क्या, उन्हें खुलवाना पड़ेगा? अब हसन बसरी बोले, अरे हसन तेरा सत्यानाश हो जाए, एक बुढ़िया भी तुझसे ज्यादा अल्लाह को पहचानती है। बोले तलब है तो कितना आगे बढ़ को है कि देखो उन्हें, इंसानों में नहीं मखलूक के अंदर कितने आगे है। मखलूक में एक मरतबा हुदहुद परिंदा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का ने था, वो परिंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूछा, तुम्हारी लश्कर को दावत करता हूँ क्या? माई खुद करे नहीं, तू क्या करता क्या? ये भाई तो मुंडी नीचे डाल दो, नहीं खा बोलता मैं बाजू बैठे तो मेरे तरफ देखते रहना, जरा इधर बैठो पलटो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं खुद नहीं करा, तू क्या करेगा? नहीं मैं करता हूँ क्या? अच्छा क्या करता? सालन तैयार करता हूँ क्या? क्या भाई, क्या सालन? अच्छा खर्क है। ये हुदहुद परिंदा ऐसा ऊपर उड़ा, एक परिंदा टिड्डी उसका नाम, वो परिंदे का नाम टिड्डी, वो परिंदे को ये परिंदा पकड़ा, हुदहुद परिंदा पकड़ के दो टुकड़े कर को समुंदर में, दरिया में डाला। किसमें डाला? दरिया में डाला। अब आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने कहता है, सालन तैयार है, बोटी तो मिलेगा नहीं, शेरवा सबको मिलता। बोला समझ में आई बात है? अच्छा, समुद्र पानी में डाल के सालन तैयार, बोटी तो मिलता नहीं, शेरवा सबको मिलता। मखलूक अल्लाह के खजानों को पहचाने, सोचो तलब है तो कैसा पहचानत होती है। एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम हुल्लू को पूछे, हुल्लू कहे तो गुडला गोबा, हुल्लू को पूछे क्योंकि 18,000 मखलूक के बादशाह थे ये। हुल्लू को पूछे, तू रात में निकलता, दिन में कहीं को नहीं निकलता? रात में निकलता, दिन में कहीं को निकलता? तो हुल्लू बोला, दिन में बनी आदम एक दूसरों पे जुल्म करते रहते हैं, ये देखना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा कभी वीराना पहाड़ पड़ोसी जगह था, आबादी की जगह क्यों नहीं रहता? हुल्लू कहने लगा, वो जगह भी अल्लाह का है, वहाँ कोई भी अल्लाह को याद करने वाले नहीं रहते, वहाँ रह के मैं अल्लाह को याद करता, अल्लाह को याद करता हूँ। तलब है तो अल्लाह कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों की, जिन्नातों की, फिर जानवरों की भी हिसाब लेते थे। ऐसी बादशाहत अल्लाह ने दिया, किसी को नहीं दिया वो। और सारे परिंदे और जानवर जमा हुए। ये हुदहुद परिंदा इना का राइट हैंड जैसा करने बात है, का तो भी भेज तो काम कर को आता, जैसा इना भेजता था मैं 12-13 साल से। किसी की कोई भी आज तक मेरे साथ ऐसा जोड़ी नहीं छूटे। एक दाऊद भाई थे, इंतकाल हो गए, मेरे साथ 2 मरतबा 4 महीने लगा है, 2 महीने तरतीब में है, शबू जारी उनका 3 दिन है, नागा नहीं छुट्टी नहीं, ना गश्ते, मरहूम दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये थे दूसरे, ये कैसी राइट हैंड बोले तो मैं नहीं है तो जमात को संभालते हते, क्या तो काम खबला है तो जागो करकाते हते। अब भी आप लोगों के सामने भी बोलता हूँ, मैं अगर नहीं है तो जिम्मेदार किस्म से हमारे ये सुबानी भाई रहते, समझ में क्या तो है तो इनको बोल के आप लोग करते रहने, उन्होंने कैसे बोले वैसा करते रहना। वो राइट हैंड जैसा था,
वो हुल्लू, वो तो हुदहुद परिंदा। अब एक मरतबा परिंदे सब जमा हो गए, वो नहीं आया हुदहुद। अब इन्होंने हाजिरी ले, भाई हुदहुद परिंदा कहाँ गया? किसी को बोल के गया, किसी को बोल के नहीं गया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम आना भी देरी हुआ, दिशा नहीं, गायब हो गया बोल के गुस्से में आ गए। अब वो आया, क्या तो उज़र पेश करा, उसे सजा दूंगा, बोल नहीं सका, कहीं गया। अगर उज़र क्या भी नहीं तो उसे कत्ल कर डालूंगा कहीं। अब वो परिंदा आया तो पूरे परिंदे बोले तेरी खैर नहीं कहे, क्या हुआ? तू बोले नहीं सका, गया। अब गुस्से में है उन्होंने। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम करे, वो क्या करा, वो परिंदा है ना, पर्रा खोल को ऐसा पामा पे पड़ा, पर्रा खोल को वो पामा पे पड़ना, इनका दिल नरम कर डाला अल्लाह ने। गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि तवाजु जो झुकता ना अल्लाह उसे ऊंचा करते, जो अकड़ता ना वो उखड़ता। मैं भी कुछ है गए तो गया खड्डे को, आयाम हीरो गए तो आसमान वाले के तरफ से जवाब मिलता, तू जीरो है, तू जीरो है। क्या है तेरे अंदर है? कुछ नहीं, तू का हीरो है। अपने आप को जीरो समझा, अल्लाह दीन का हीरो बना डालते। हाँ, तवाजु ऐसी चीज है, झुकना ऐसी चीज है। एक मर्तबा एक बादशाह की बहन थी, बहन को एक जिन वारिद हो गया, शैतान, और कितने के लोग आए छुड़ाने के वास्ते, और सबको मार को भेजा। वो कोई भी मुकाबला नहीं कर सका। एक दुबला पतला आदमी आया और बादशाह बोला, देखिए अरे इतने बड़े फैलवान कुछ मार खा को चले गए, तू मर जाता रह गए। तो कब बोला, तू मर जाएगा तू? किसका जी भाई पता नहीं। वालेकुम सलाम। हैदराबाद आए क्या? मौलाली जंक्शन। अभी आना हो ना? अच्छा, मौलाली जंक्शन सिकंदराबाद आ दो, आने के बाद फ़ोन कर लो, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, नहीं नहीं, हमें आते नहीं, तुम्हें ऑटो बात कर लेगा, बहुत दूर पे है, हमें 6 किलोमीटर कुछ है। तुम्हें डायरेक्ट वहाँ मैं बोलता, मैं ऑटो बात कर लेके आ सकते, ठीक है ना? हाँ, अच्छा। तो क्या बोल रहा था? वो तुम मर जाएगा रे, तो तुम्हें भेज को देखो, मैं छुड़ाता हूँ बोला। अच्छा, जाकर को दरवाज़ा खोलते ही जाके उस औरत के पामा पर पड़ गया। पामा पर पड़ को बोला, वो अंदर है सो शैतान जिन को, भाई तुझे मालूम है मैं कमज़ोर आदमी, तेरे से मुकाबला करने नहीं आया हूँ। मेरी एक बहन है, तू चले गए तो बहन की शादी हो जाती। उसका वो तवाजु, वो आजिजी, झुकना, वो अंदर है सो जिनको इतना पसंद आया। वो खुद बोला, कितने लोग आए कि मेरे से मुकाबला करने आको मार खा को चले गए, लेकिन तू आके झुका है, ये मुझे इतना पसंद आया, मैं चले जाता हूँ बोल के चले गए। हाँ, ये झुकना अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो ये परिंदा भी हुदहुद जाके सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरों पे ऐसे पड़ गया। अब गुस्सा ठंडा हुआ तो पूछे, अरे भाई तू कहाँ था गए, कहाँ चले गया तू? अब ये पूछते ही अब जरा हिम्मत आ गई। अब बोले, आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो यमन के इलाके में मल्लिका बिल्खिस से सूरज का पूजा कर रही। हाँ, कैसा तकाजा लेके आए देखो। काम जब लेने पे तो अल्लाह कैसे लेते हैं। वहाँ एक रानी है, बिल्खिस रानी, सब सूरज का पूजा कर रहे। और कितना दूर गया वो? 1500 किलोमीटर का सफ़र करके गया वो। 1500 किलोमीटर का सफ़र करके गया। आप यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ सारे लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं। एक मखलूक कैसा पहचानत है देखो, जब तलब होती तो कैसा आगे बढ़ते हैं। अब वो तकाजा लेके आने पे सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करे, लिखे खत है, उसमें दावत अल्लाह के तरफ से, और तूच ले जा को दे बोले उन्होंने। अब वो ये नहीं बोला मैं थका हुआ हूँ, इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, खाया नहीं पिया नहीं आराम नहीं, बल्कि खुद भी 1500 किलोमीटर, मुझे सारा नहीं सुनाना। तो इसके अंदर जो तलब है तो वो अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना के इस उम्मत को सुनाया। कुरान का हिस्सा बना के इस उम्मत को सुनाया।
उसके लिए मेरे भाइयों, जब तक अल्लाह के रास्ते में चलते रहे, तालिब बन के तलब के साथ चलते रहे, बेतलबों को जगह नहीं है, तलबों को जगह है। मदरसे में जो बच्चे पढ़ते ना, तलब वाले ही पढ़ते। मस्जिद को जो आते ना, वो तलब वाले। किसी खानखा में किसी शेख के पास है, तलब वाले ही जाएंगे, बेतलब वाले जाएंगे नहीं। और अल्लाह बेतलबों को कभी नहीं दिया, और तलब वालों को अल्लाह ने कभी महरूम नहीं करा। तो जब तक अल्लाह के रास्ते में है, आदमी हमेशा तालिब बन के चलते रहना, हमेशा। यहाँ हमारी कोई ख्वाहिश है जानी, देखो याद रखो, ख्वाहिश नहीं रहना। माविया बिन यजीद, यजीद का बेटा माविया बिन यजीद, 22 साल की उम्र है, 22 साल की, 20 पर 2 साल की उम्र है, पागलपन की उम्र है। 3 बर्रे आजम की हुकूमत है, 3 कॉन्टिनस यानी मूड खंडाला, 3 खंडाला बोलते ना, उतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना माविया बिन यजीद। सिर्फ 40 दिन हुकूमत करा, 40 दिन। उसके बाद अपने ख़ानदान वालों को जमाया और कहने लगा, भाई जिस तख्त के नीचे मेरा नबी का ख़ानदान का खून गिरा है, उस पर मैं लानत करता हूँ, तुम संभाल लो बोल के सिर्फ अल्लाह के लिए इतनी बड़ी ख्वाहिश, और उन्होंने हुकूमत को छोड़ दिया। हुकूमत को छोड़ दिया, हुकूमत को छोड़ दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास इनकी जो बीवी है फातिमा, हदिया में एक बांदी को दिया गया। वो बांदी बड़ी खूबसूरत थी। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बनने से पहले बीवी से कहते थे, ये बांदी को मेरे को हदिया कर गए तो मैं नहीं करती, बोली। अच्छा, जब खलीफा बादशाह बने तो एक दिन खुद सिंगार के हदिया करके खड़ा कर दी बीवी। अब इन्होंने नज़र डाले, कौन है तू, बोले कौन सी इलाके की है, फलाने इलाके की। तेरा मालिक कौन है, फलाना है। क्या तुझे ज़बरदस्ती से लाया गया? हाँ, बोली। चले जा अपनी जगह गए। बांदी पूछी, पहला जो शौक़ था, इश्क था मुझसे, किधर चले गया? तो बोले उस पहले से भी ज़्यादा है अब इस वक्त, लेकिन इस पे बैठने के बाद मुझे इंसाफ को ज़िंदा करना है। अपना ख्वाहिश मेरे भाइयों छोड़ देना है। यहाँ आने के बाद है, जैसा बोलते रहते ना हमारे हाजी साहब है, गस्साल, गस्साल के हाथ में मुर्दा कैसा रहता? क्या भाई, पानी डालना वाला डालता है तो गर्म पानी कहीं को डाल रहा, बोलता मुर्दा कभी सुने कब? तो बोले तो सब भाग जाते हैं। ठंडा पानी कहीं को डाल रहे, उधर कहीं को पलटा रहे, इधर कहीं को पलटा रहे। जैसा गस्साल के हाथ में मुर्दा रहता है, उसी तरह अल्लाह के रास्ते में भी ऐसा चलते रहना। इंशाल्लाह आगे अल्लाह चमकाएंगे, आगे अल्लाह हमसे काम लेंगे। भाई पहले कल भी बताना, बने हुए लोगों से अल्लाह काम लेंगे, बिगड़े हुए लोगों से अल्लाह कभी काम नहीं लेते। दीन में मानेंगे, दीन मिलेगा। जिसको दीन मिलेगा उनको दीन की मेहनत भी मिलेगी। अल्लाह हमको औरों को भी हिदायत का ज़रिया बनाना है, हमको भी हिदायत मिलना है। तो बस भाई अल्लाह के रास्ते में मुकाम पे तालिब बन के चलते रहना। चलेंगे ना? चलिए, अब जल्दी मुकामी लोग आने से पहले ज़रूरतों से फारिग हो जाओ। सुभान अल्लाह।